नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। सरकारी ठेकों पर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। नागपुर तशद्दुद के मुबैना मुलजिम फ़हीम खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, गैर मजाज होने का दावा। इम्तियाज जलील ने जानिबदाराना कार्रवाइयों का पुलिस और इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। कॉम्रेड कुणाल कामरा का एकनाथ शिंदे पर तबसरा, मुश्तइल शिवसैनिकों का हंगामा, फडणवीस ने भी कड़ी कार्रवाई का दिया इशारा। महाराष्ट्र है या गुंडा राज है, कुणाल कामरा के स्टोरियों पर हमले की संजय रावत ने की कड़ी तनकीद। कहा, फडणवीस एक कमजोर वजीर दाखिला साबित हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में इनकाउंटर के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम, पूरे इलाके को घेर लिया गया। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। कर्नाटक में मुस्लिम कम्युनिटी को सरकारी ठेकों में 4% रिजर्वेशन देने के मामले पर राज्यसभा में पीर को हुक्मरां और अपोजिशन जमातों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई। सुबह जब स्पीकर जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो हुक्मरां जमात ने जोर दिया और नारेबाजी की और कहा कि मिस्टर धनखड़ ज़रूरी दस्तावेजात मेज़ पर रखवाने के लिए मुतल्लिका वज़ीर का नाम पुकारें। जब नाम पुकारा गया तो पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरेन रिजिजू बोलने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आइनी ओहदे पर फाइज एक लीडर ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए आइन में तब्दीली की बात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सदर ऐवान में मौजूद हैं, उन्हें इस मामले में बयान देना चाहिए। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए आइन को कोई नहीं बदल सकता। कांग्रेस पार्टी ने आइन को बचाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की है। इसकी वजह से ऐवान में दोनों फरीकों के दरमियान ज़बरदस्त हंगामा हुआ। ऐवान में हंगामे को देखते हुए मिस्टर धनखड़ ने कार्रवाई को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। Sir, it is not our intention to disrupt this 0 hour. Why I am standing here is because of an extremely important and sensitive matter which has come to our notice. The members of parliament from the NDA have met me and raised this very important issue. What is the issue? Sir, one of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the constitution of India. Reservation for It is what? extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the constitution of India. The constitution provided by Dr. BR Ambedkar, and these people, they are talking about constitution, they are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar, but their people officially makes a statement to change the constitution of India. I want the Congress president who is sitting here in the house to make very specifically clear about the Congress party's position. How and in what manner you want to change the constitution of India to provide reservation to Muslim community? I want clear-cut reply and position from the Congress party president
who is leader of the house in the Rajya Honorable Sabha. Minister, reservation in what? Sir, my request is the Congress party president, who is the leader of the house, leader of the opposition in the Rajya Sabha, should make the position clear and tell the August House as well as to the people of India why Congress party want to change the constitution of India to provide reservation to Muslim community. मुस्लिम कोटा रिजर्वेशन और औरंगजेब के मसले पर बीजेपी के रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया है कि राहुल गांधी को इस मामले पर वजाहती बयान देना पड़ेगा। सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। ट्रूथ हैज द वेरी अनकैनी हैबिट ऑफ अपीयरिंग एंड रीअपियरिंग। पिछले 2-3 साल से कांग्रेस का आरोप हमारे ऊपर रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका एकमात्र थीम यही था, आपने याद होगा, जो बिल्कुल झूठ पर आधारित था, एक भ्रामक प्रचार था। A complete falsehood and misleading campaign was undertaken by the Congress party in the last election, that if BJP gets majority or 400 seats as they claim, they will change the constitution. हमने बार बार कहा हम बदलेंगे नहीं, और हमने बदला भी नहीं। हमने एक बार बदला जब 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन गरीब समाज के लोगों के लिए दिया, सबने उसका समर्थन किया। आज मुझे पहला सवाल उठाना है कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? A very larger question today is emerging in the country. In quest for vote bank politics, appeasement politics, and bluntly speaking for the sake of Muslim vote, where the country will go. ये जो वन अप मैनशिप चल रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज के एक स्टेटमेंट पर आने के पहले थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना जरूरी है, टू एक्सपोज द कांग्रेस पार्टी। याद करिए, इन्होंने शाहबानों के जजमेंट को पलट दिया था ना, और शाहबानों का केस क्या था, आज के देश के नौजवानों को ये जानने के लिए जरूरी है, वो जानते भी होंगे कि एक लगभग 70 साल की बूढ़ी महिला को उसके पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा था। उसने सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस की गुहार लगाई, जिसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया। लोकसभा में पीर को अपोजिशन के कुछ अरकान ने अपने मुतालबात को लेकर हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जैसे ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अपोजिशन अरकान ने पोस्टर उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के दरमियान स्पीकर ने कहा कि ऐवान में पोस्टर लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पार्लिमानी उमूर के वजीर पर जोर दिया कि वो इस मामले में एक तजवीज़ लाएं ताकि ऐवान में पोस्टर लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान को तपेदिक यानी टीबी से पाक बनाने के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। इस हदफ को हासिल करने की सिमत में गुजरात सबसे आगे है, जबकि मेघालय हुकूमत ने रियासत के 4500 टीबी के मरीजों को गोद ले लिया है, ताकि उसकी भरपूर मुहिम में हिंदुस्तान को टीबी से आज़ाद बनाया जा सके। आलमी यौम तपेदिक यानी टीबी के लिए दिए गए अपने पैगाम में सदर मुर्मू ने कहा कि इस दिन का मकसद आवाम को टीबी के आलमी असरात के बारे में बेदार करना, बीमारी को काबू में करने से मुताल्लिक चैलेंजेस के बारे में बेदारी फैलाना और उसे रोकने की कोशिशों की हिमायत करना है। नागपुर में हुए तशद्दुद के बाद हुकूमत ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।
इस सिलसिले में हुकूमत ने तशद्दुद के मुबैना मुलजिम फ़हीम खान के घर पर बुलडोज़र चलवा दिया है। फ़हीम खान फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि इस तशद्दुद का मास्टरमाइंड फ़हीम खान नाम का शख्स था, जिसके घर पर आज बुलडोज़र चलाया गया है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम आज सुबह ही बुलडोज़र लेकर फ़हीम खान के घर पर पहुंच गई। इस दौरान बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। बताया जाता है कि फ़हीम खान बुर्का का कारोबार करता था। इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने कुछ वीडियो जारी किए थे और इश्तिहार अंगेज बयान दिए थे, जिससे लोग भड़क गए और तशद्दुद फूट पड़ा। फ़हीम खान को पुलिस ने गुज़िश्ता मंगल को ही गिरफ्तार कर लिया था और उसे अदालत में पेश किया गया था। वैसे फ़हीम खान समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने वज़न से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया था। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर तनाज़ात में है। कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पर महाराष्ट्र की सियासत के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर नाजेबा तबसरा किया है। वीडियो सामने आते ही शिवसैनिक गुस्से में आ गए और इतवार को उन्होंने मुंबई के खार इलाके में वाक़ उनके स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़ फोड़ की। दावा किया जा रहा है कि वीडियो यहाँ शूट किया गया है। इस दौरान कुणाल कामरा के खिलाफ MID से थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। शिंदे सेना के MLA बराजी पटेल ने शिकायत दर्ज कराई है। उधर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा के रिमार्क्स को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कामरा ने शिंदे पर रिमार्क करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तौहीन की है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि कौन गद्दार है और कौन खुददार है, इसका फैसला आवाम ने पहले ही कर दिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। दरियासना शिवसेना UBT के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि कुणाल कामरा एक मारूफ मुसन्निफ और स्टैंड अप कॉमेडियन है। जब कुणाल ने महाराष्ट्र की सियासत पर तंजिया गाना लिखा तो शिंदे गैंग को गुस्सा आ गया। उसके लोगों ने कामरा का स्टूडियो तबाह कर दिया। देवेंद्र जी, आप एक कमजोर वजीर दाखिला हैं। इस दौरान कुणाल कामरा के स्टूडियो और होटल में तोड़फोड़ करने के इल्जाम में पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया है।
याद रहे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने इस वाक़े को गुंडागर्दी करार देते हुए मुंबई पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में पुलिस पर शिद्दत पसंदों की फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस और आर्मी ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया है। इस तलाशी ऑपरेशन के लिए कठुआ के हीरानगर में सानियाल के जंगलाती इलाके को घेर लिया गया है। घने जंगल में छुपे शिद्दत पसंदों की निशानदेही के लिए UAV का भी सहारा लिया जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। चेपॉक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 155 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने हदफ 5 गेंदें बाकी रहकर हासिल कर लिया। राचिन रविंद्रा चेन्नई के लिए हकीकी मैच के फाते थे, क्योंकि उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 65 रन बनाए। चेन्नई की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी तूफानी अंदाज में 53 रन बनाए। मैच से कबल मध्याह्नों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। सबसे बेस्ट मैच, जो बेस्ट राइवलरी होती है उसमें सिर्फ धोनी का जो कैप्टनसी होता है उसमें ही जीतेंगे। धोनी एक लव है और वही सब करेगा। Ayan, who did you want to win today? CSK। Yeah, so we came to watch CSK, his favorite team, his favorite player. We got lucky enough to see Dhoni also. So we're very happy. Great fun it was. First win for CSK and First momentum to carry on. What is your expectation in the coming matches too? And same. I mean, today's match was great. I think we played well to our conditions. So hoping for more. I mean, at home we should hopefully be the strongest team, and hoping to see them lift the trophy again soon. It was an amazing match. It was amazing. what is the particular thing which Lineup, the whole team is very nice. The bowlers and the batsmen, they did very well. The team selection is very, very nice. All rounder. particularly on Dhoni's entry today? Yeah, I couldn't feel my ears. Avlo louder in the chin. So it's our first time we've come here from Scotland. Our expectation was good. It was a good atmosphere inside. Oh, yeah, it's just fantastic. Really loved it. It was great atmosphere, almost to the wire. But yeah, fantastic. CSK! CSK! Today's match was very good. It was proper low-scoring thriller that Chepok is known for, and that's what it was quite good for as well. And to say that spin played a big role in it. Noor Ahmed was like the perfect example of why Fleming spent 10 crores on him. That was the best perfect example of it. Middle order, it's actually quite a poor performance, because if you take into account if the absence of Bumrah, this will be a completely different game. Yeah. I mean, yes, we all expect him to hit his 6, but Rachin Ravindra deserved his 6 because he played a very sensible innings, and yeah, he fully deserved it. Yeah, next game's against RCB. They came off very good win against KKR. So I'm guessing still it should be the spin trio coming to play, and probably Devon Conway as inclusion instead of Sam Curran. That's the only change that should be there. Today's match was spectacular, and it was also Treat to watch Dhoni. it was treat to CSK fans, Dhoni fans, and MI fans as well. So yeah, it was really worth the money. Sorry. Yes, definitely, yeah. This will be carried over, and as we pray, we will have to lift the cup. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सरकारी ठेकों पर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। नागपुर तशद्दुद के मुबैना मुलजिम फ़हीम खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, गैर मजाज होने का दावा। इम्तियाज जलील ने जानिबदाराना कार्रवाइयों का पुलिस और इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। कॉम्रेड कुणाल कामरा का एकनाथ शिंदे पर तबसरा, मुश्तइल शिवसैनिकों का हंगामा, फडणवीस ने भी कड़ी कार्रवाई का दिया इशारा। महाराष्ट्र है या गुंडाराज है, कुणाल कामरा के स्टूडियो पर हमले की संजय रावत ने की कड़ी तनकीद। कहा, फडणवीस एक कमजोर वजीर दाखिला साबित हो रहे हैं। और
जम्मू कश्मीर के कठुआ में इनकाउंटर के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम, पूरे इलाके को घेर लिया गया। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।